Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with solving a few worded simple problems which are based on quadratic equation. So today we continue with exercise 6C from chapter number 6. In exercise 6C, the sums are related with speed, distance and time, and a few problems based on cost, price and sale price. So firstly we take the case of time, speed and distance. So before we start, let us have a look on the formula. स्पीड जो होती है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर हम स्पीड और टाइम को इंटरचेंज कर दें तो टाइम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब एक्सरसाइज 6C में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेटमेंट इज द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x + 25 किलोमीटर पर आवर. तो हमें पता करना है इन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर. एंड इन सेकेंड पार्ट, if the ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate the speed of express train. So for this is question number 1. Now, speed of ordinary train. It is x kilometer per hour. And speed of express train, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है x + 25 किलोमीटर पर आवर. एंड नाउ फर्स्ट पार्ट, अब इसमें हमें दे रखा है डिस्टेंस 300 किलोमीटर. डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन. तो फर्स्टली टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन. जो ऑर्डिनरी ट्रेन है वो कितना टाइम लगाएगी 300 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए. हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब यहाँ पे डिस्टेंस है 300 और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. तो इट मीन्स जो टाइम आएगा हमारे पास दैट इज 300/x आवर्स. यूनिट ऑफ टाइम इज आवर. और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस सेम है 300 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x + 25 किलोमीटर पर आवर. तो इट मीन्स टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 300/x + 25 आवर. अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ना, जिसमें हमें पता करना था कि टाइम टेकन बाय द 2 ट्रेन्स. अब इन सेकेंड पार्ट अगेन वी हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. He said, if the ordinary train takes 2 hours more than the express train, यानी कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 2 आवर्स ज़्यादा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमें पता करनी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, time of ordinary train, it is given as time of ordinary train. This is
time of express train plus 2. Now time of ordinary train is 300 over x and time of express train is 300 over x plus 25 plus 2. And now what we will do, shift 300 over x plus 25 to left hand side and then take 300 common. In order to simplify, first we take 300 common, तो ये बन गया हमारे पास 300 इंटू 1 over x minus 1 over x plus 25 is equal to 2. Now take LCM. LCM is x into x plus 25. तो here it is x plus 25 minus x. अब यहाँ पे प्लस x और माइनस x कट गया एट द सेम टाइम 2 and 300. 2 ones are 2 और 150. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं. तो इट इज 150 25 over x square plus 25x is equal to 1. 150 into 25. 150 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो इट इज 057003. तो इट कम्स आउट टू बी 3750. 3750 is equal to x square plus 25x. And if we rewrite in standard form, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, विच एवर यू फील कन्वीनियंट. अब अगर हम इसे फैक्टराइजेशन से करते हैं तो हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी. टू स्प्लिट मिडल टर्म हमें इस तरह के दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3750 आए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 1 इंटू 3750 विद नेगेटिव साइन इट इज माइनस 3750. और जब हम उनको प्लस करें तो प्लस 25 आए. फॉर दिस हम 3750 को फैक्टराइज करते हैं. पहले 3 से 1250 देन 5 इट इज 250 अगेन 5 50. अब यहाँ पे अगर हम देखें 25 इंटू 3 75 75 इंटू 50 3750 और 75 माइनस 50 25 आ जाएगा. तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 75x माइनस 50x माइनस 3750 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म से x कॉमन, थर्ड और फोर्थ टर्म से माइनस 50 कॉमन, तो इट इज x प्लस 75 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू 0. तो फिर उसी तरह से आइदर x प्लस 75 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x माइनस 50 0 हो सकता है. तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 75 और सेकेंड फैक्टर से आ जाएगा x इज इक्वल टू 50. अब x माइनस 75 इज रिजेक्टेड. क्यों रिजेक्टेड? बिकॉज जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 50 होगी. अब x क्या था हमारे पास? x वॉज द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. तो दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is x plus 25. x plus 25 means 50 plus 25 and it comes out to be 75 and unit is kilometer per hour. तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ गई 75 किलोमीटर पर आवर. अगर पूछा होता व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन तो हमारे पास सीधा ही आंसर था वट एवर एक्स इज 50, तो स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले केसेस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. अब जो यही सेम क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकती थी कि द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज 25 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द एन ऑर्डिनरी ट्रेन इफ द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इज 2 or more than by ordinary train from the express train. तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स. बोथ ट्रेन्स भी पूछ सकते थे, एक ट्रेन भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको कलेक्टिवली भी एक्सप्रेस कर सकते थे. तो वहाँ भी हमें लेट करना पड़ना था कि लेट स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर.
तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्सप्रेस ट्रेन उससे 25 किलोमीटर तेज चलती है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। फिर इसी तरह से उसको रिलेट करके वी कैन प्रोसीड। तो होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6C। तो आप 6C के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑन द सेम वे सॉल्व कर सकते हैं। एंड होप है कि you will understand how to solve the other problems from exercise 6, and this question will help you a lot in solving the other cases also. Thank you very much for watching this AV.